Good morning, students. We have completed the sixth unit of physics, gravitation. We have completed. We have completed all the topics which are given in the CBSE syllabus. Today, in our this lecture, we will cover all those topics which are deleted from the CBSE syllabus, but those topics are important from the competitive exam point of view. So, first such topic is inertial mass and gravitational mass. We have to understand the concept of inertial and gravitational mass. Inertial and gravitational mass. First of all, what is mass? मास क्या है? कैसे हम किसी भी बॉडी के मास को डिफाइन कर सकते हैं कि what is the mass of a body? So students, mass of the body is the quantity of matter possessed by a body. Mass means matter, material. So how much matter is contained by a body is known as its mass. So mass is a quantity of matter possessed by the body is known as mass. Clear? कोई भी बॉडी है वो कितना मास पोजेस करती है, कितने मास की, कितने मैटर की क्वांटिटी that is possessing, that is known as mass of a body. Now we will understand two different concepts about the mass. One is inertial mass and second is gravitational mass. So we will explain inertial mass and gravitational mass by differentiating the two. Inertial mass. Inertial mass, so you can understand about the inertia linked with a body in linear motion. And second is gravitational mass. Inertial mass of a body is usually represented by mi, that means inertial mass of the body. Gravitational mass is usually represented by gravitational mass of the body. So what is the difference between the two? Inertial mass and gravitational mass. Inertial mass क्या है बेटा? देखिए, whenever external force, जब किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हो and external force, suppose F you are applying, and by the application of this external force, an acceleration is produced in the body. Suppose A acceleration is produced in the body. Then according to the Newton's second law, magnitude of external force applied on the body is given as mi into A. Here the mass which we are considering is inertial mass of the body, because we are applying the force and there is acceleration. So we are talking about the linear motion. So the mass is inertial mass. So here inertial mass is given as external force applied on the body, and here a unit acceleration is produced in the body. So inertial mass of a body is equal to the magnitude of force, external force actually required to produce a unit acceleration in a body. So inertial mass is that mass which is required, or we can say inertial mass is equal to the magnitude of external force
applied on the body in order to create a unit acceleration in the body. कि suppose किसी body में अगर आप unit mass की acceleration produce करना चाहते हो, that आप क्या कर रहे हो, external mass F उसके ऊपर क्या कर रहे हो, apply कर रहे हो, तो magnitude of external force applied on the body in order to create unit acceleration. This is known as inertial mass of the body. So inertial mass को आप measure कर सकते हो by finding out the acceleration of it produced by the applied force. ठीक है, inertial mass को आप कैसे find out कर सकते हो कि कितना acceleration create हुआ by the application of this much of force. इन दोनों के magnitude से we can find out the inertial mass. Now one more thing you have to remember regarding the inertial mass, यहाँ पे जो gravity है, gravity plays no part, plays no role, or we can say gravity plays no part in measurement. क्लियर है, ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता, कोई पार्ट नहीं होता किसमें, मेजरमेंट में. क्लियर है बेटा. अब देखिए ग्रेविटेशनल मास क्या होता है, इसको तो इनर्शियल मास को तो वी हैव डिनोटेड बाय एम आई. इन द सेम वे जो ग्रेविटेशनल मास है इट इज डिनोटेड बाय एम जी. और ग्रेविटेशनल मास की मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि देखिए यहाँ से अगर यहाँ पे सपोज एक्सेलरेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होता, इन दैट केस जो ग्रेविटेशनल इनर्शियल मास होता वो किसके इक्वल होता, इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड. इन द सेम वे जो ग्रेविटेशनल मास है इट इज रिलेटेड टू द ग्रेविटेशनल पुल, कि जितना ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल पुल का फोर्स है किसी बॉडी पे, तो ये जो ग्रेविटेशनल मास है इट इज इक्वल टू द रिलेटेड टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑन द बॉडी. किसी भी बॉडी के ऊपर किसी ग्रेविटेशनल पुल का कितना फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल मास इज इक्वल टू दैट ग्रेविटेशनल पुल. हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्लेन द ग्रेविटेशनल मास विद द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सपोज एक बॉडी है जिसका मास है mg, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल मास इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ का एग्जांपल ले लेते हैं. तो अर्थ का इफ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अर्थ, तो अर्थ का भी अपना मास है दैट इज m. और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, सपोज दिस mg इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जस्ट लाइक दिस. This is the center of earth O. It is its radius and this mg is placed on the surface of earth. So the distance between the two masses, here complete mass of the earth is concentrated at the center. So distance between the two masses is r. तो जो gravitational pull होगा, gravitational pull का जो force लगेगा due to the mass of earth on this body, it is given as g mg over r square. Clear है बेटा. From here we can find out the magnitude of mg. So mg is equal to the fr square over gm. Clear. And we can write it as fgm over r square. I hope I'm clear. And this is written as I. मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. तो देखिए इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं. एंड वी कैन राइट इट एज ग्रेविटेशनल मास इज, देखिए इट इज स्मॉल m. ग्रेविटेशनल मास इज गिवन एज f over I. And if this I becomes 1, in that case gravitational mass of the body is defined as the magnitude of gravitational pull experienced by the body in a gravitational field of unit intensity. देखिए मैंने आपको बताया था कि I क्या है, gravitational field intensity. तो कैसे डिफाइन करोगे ग्रेविटेशनल मास को, gravitational mass is defined as the magnitude of gravitational pull.
कि ये जो बॉडी है जो अर्थ की सरफेस पे रखी हुई है वो इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है उस फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, या उस फोर्स के जो मैग्नीट्यूड है जितना ये फोर्स एक्सपीरियंस करती है दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल मास। तो देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल मास को जब हम मेजर करते हैं तो उस केस में आपके पास ग्रेविटी का रोल प्ले होता है, लेकिन जब हम इनर्शियल मास को एक्सप्लेन करते हैं मेजर करते हैं तो उस केस में ग्रेविटी प्लेस नो रोल। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू। सो यहाँ पे अगर हम देखा जाए कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास, तो कैसे बता सकते हो? देखिए दोनों ही मासेस है तो दोनों को हम सेम यूनिट्स के अंदर मेजर करेंगे। दोनों कैसे क्वांटिटीज है? मास आपको पता है एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इनर्शियल मास एज वेल एज ग्रेविटेशनल मास बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज। अब दोनों ही जो है वो एक तो एक्सटर्नल मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल है। देखिए एम आई को हमने क्या बताया था? इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, सपोज यूनिट एक्सेलरेशन ए, ये था। तो कहीं पे भी आपके पास जो इनर्शियल मास है और जो ग्रेविटेशनल मास है वो दोनों ही इसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, दोनों डजंट डिपेंड ऑन द शेप एंड स्टेट ऑफ द बॉडी। सेकेंड, आप ये बता सकते हो कि ग्रेविटेशनल मास है of a body is affected by the presence of other bodies near it, whereas जो inertial mass है that remains unaffected by the presence of other bodies near it. Clear? तो next मैंने आपको difference बताया था, inertial mass is measured by finding the magnitude of acceleration produced in it by the application of external force। कि अगर आप किसी बॉडी में यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स, इन दैट केस एम आई इज इक्वल टू द एफ, एंड हियर ग्रेविटी प्लेस नो पार्ट इन मेजरमेंट, बट जो ग्रेविटेशनल मास है इन दैट क्या होगा, जो आपके पास ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हम निकाल रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल मास है ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑन इट, और यहाँ पे इनर्शिया का कोई रोल नहीं होता, inertia plays no role, यहाँ पे gravity plays no role because this is inertial mass। तो यहाँ पे inertia रोल प्ले करेगा, gravity रोल प्ले नहीं करेगी। यहाँ पे ये gravitational mass है तो यहाँ पे gravity का पुल की वजह से जो फोर्स लग रहा है उससे हम मेजर कर रहे हैं gravitational mass को, तो यहाँ पे inertia plays no role। Clear? So this is the main difference between the two, and both are equivalent to each other, gravitational mass as well as inertial mass, both are equivalent to each other। So this is the main difference between the two। Now we will understand the next small topic, what do you understand by the center of gravity? center of gravity से आप क्या समझते हैं? what do we understand by the center of gravity? तो देखिए center of gravity नॉर्मली हमारे पास जो बॉडीज है जस्ट लाइक स्फीयर है, ये होलो रिंग है, एक सिलेंडर है, इन केस में जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास होता है उसी को हम क्या, सेंटर ऑफ मास इज ही क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। लेकिन बहुत सारी बॉडीज ऐसी होंगी जो रेगुलर शेप की नहीं होंगी, जिसमें जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी। इन दोज बॉडीज जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी, ये बॉडी अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रहे हैं कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, तो उसके लिए ये बॉडी ऑब्वियसली शुड बी प्लेस्ड इन सम ग्रेविटेशनल फील्ड। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी and this body is placed in gravitational field is that point where the net gravitational
force of the field acts. So it is that point where net gravitational force of the field acts. देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का, कोई भी बॉडी है वो किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर रखी है तो उस बॉडी के ऊपर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसके लिए मेनली वो पॉइंट होगा जहाँ पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स की वजह से एक्ट कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था मेनली हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करता है किसके साथ, सेंटर ऑफ मास के साथ। जैसे स्फीयर का सेंटर ऑफ मास अगर ये है तो यही क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पे almost mass of the complete mass of the body is supposed to be concentrated, that point is known as center of mass। तो जो center of mass होगा center of gravity coincides with the center of mass, but usually in some bodies which are not of uniform regular shape, or we can say in which the density is not uniform, in those bodies center of gravity does not coincide with the center of mass। क्लियर है? तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक टॉपिक था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी की जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर प्लेस्ड है वो पॉइंट है जहाँ पे जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है फील्ड का वो क्या करता है, एक्ट करता है। तो दिस इज द टॉपिक। नेक्स्ट है we have discussed the topic of acceleration due to gravity and effect of height and depth on acceleration due to gravity g we have studied. These two were the topics which are included in the CBSE syllabus. Now we will understand the effect of shape on the acceleration due to gravity and effect of rotation। कि जो अर्थ का रोटेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैसे इफेक्ट करता है, रोटेशन की वजह से कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रही है, ये दोनों हमें क्या करने हैं, अभी स्टडी करने हैं। Basically these are not included in the CBSE syllabus, but these are important from the competitive exam point of view. So we will understand the concept of effect of shape of earth. First is effect of shape। इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ कि अर्थ का जो शेप है उसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे इफेक्ट होती है। देखिए, वी कंसिडर अर्थ एज अ स्फीयर, बट एक्चुअली अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, इट्स शेप इज जस्ट लाइक दिस। अर्थ की शेप है, इट इज जस्ट लाइक दिस, इट इज flattened at the pole and it is bulging out at the equator। ये पोल्स के ऊपर तो जस्ट लाइक ये फ्लैट है एंड इक्वेटर के ऊपर ये बल्जिंग आउट है, बाहर की तरफ बल्ज आउट कर रही है। तो अर्थ का जो एक्चुअल शेप है इट इज जस्ट लाइक दिस, नॉट परफेक्ट स्फीयर, इट इज फ्लैटेंड एट द पोल एंड बल्जिंग आउट एट द इक्वेटर। अब देखिए, अगर ये अर्थ का अगर हम सेंटर मान लें तो सेंटर से अर्थ के सरफेस पे किसी भी पॉइंट को आप ज्वाइन करते हो, दैट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द पॉइंट ऑन द surface of earth is known as radius। so you know this is pole, north pole and this is south pole। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम कह सकते हैं कि रेडियस एट पोल्स। अब देखिए, ये जो है ये आपके पास जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। अब ये आपके पास इक्वेटर है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं आर ई से शो कर सकते हैं।
कि इक्वेटोरियल रेडियस और ये हमारे पास है पोलर रेडियस। तो आर पी इज पोलर रेडियस ऑफ अर्थ एंड आर ई इज इक्वेटोरियल रेडियस। कल मैंने आपको पोलर और इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स बना के दिखाई थी। दिस इज इक्वेटोरियल रेडियस। अब बेटा ये जो यूजुअली हमने देखा है कि किसी भी बॉडी का अगर आप रेडियस देखते हो तो सब जगह आपको रेडियस क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। बट हियर आर पी इज नॉट इक्वल टू आर ई। यू कैन सी ओवर हियर कि जो आर ई वाला डिस्टेंस है इक्वेटोरियल रेडियस जो है वो ज्यादा है इससे, इक्वेटोरियल सॉरी पोलर रेडियस से। आर ई दैट मीन्स इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन द पोलर radius and there is a difference of almost 21 kilometers between the two. That means RE minus RP is equal to the 21 kilometers. ये डिफरेंस है RE और RP के बीच में। अब देखिए अर्थ की सरफेस के ऊपर जो हम ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते हैं वो ये होती है G इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। That means this acceleration due to gravity is inversely proportional to r square. Inversely proportional means r की वैल्यू अगर ज्यादा है तो g की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या होगी, कम। तो r की वैल्यू अगर कम है तो g की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। अब यहाँ से आप देखिए आर ई और आर पी में से किसकी वैल्यू ज्यादा है, आर ई की वैल्यू ज्यादा है। तो G is inversely proportional to RE and G is inversely proportional to RP. This distance is larger than RP. अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है तो इक्वेटर के ऊपर जो G की वैल्यू होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर वो क्या होगी, वो लेस होगी। और ये RP वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है, ग्रेटर है इससे, RP से। तो अगर ये वैल्यू ग्रेटर है और ये वैल्यू स्मॉलर है, you can see RP is less than RE. तो RP is smaller. In that case जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी एट पोल्स वो क्या होगी, ज्यादा। तो फ्रॉम हियर वी हैव कंक्लूडेड दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स। तो ये देखिए इफेक्ट ऑफ शेप, शेप की वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। पोल्स और इक्वेटर पे जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट सेम। The value of acceleration due to gravity at equator is less than the value of acceleration due to gravity at poles. Why it is so? Because जो आपके पास इक्वेटोरियल रेडियस है उसकी वैल्यू ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द पोलर रेडियस, और हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आर अगर ज्यादा वैल्यू कम, आर अगर कम तो वैल्यू ज्यादा। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ शेप of earth on the acceleration due to gravity. Clear है? Okay. तो देखिए अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो दिस थिंग यू प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड। इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड, effect of latitude is also known as due to rotation of earth about its own axis। कि अर्थ जब अपने एक्सेस पे रोटेट करती है तो रोटेशन की वजह से कैसे आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो वेरी करती है। तो देखिए इसी को बोलते हैं इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड, कि लैटिट्यूड अगर चेंज होगा तो कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल वेरी। देखिए अर्थ जो है यहाँ पे एक एज ए स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं, ये आपके पास अर्थ है। क्लियर? अब ये अर्थ का सेंटर है ओ, अर्थ के सेंटर से ये आपके पास क्या है,
अगर दोनों तरफ हॉरिजॉन्टल अगर लाइन हम ड्रॉ कर दें तो दिस इज इक्वेटर, क्लियर। और यहाँ से ये आपके पास क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन, कल हमने बनाया था, इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन कहेंगे। अब देखिए बेटा क्या होता है कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ। अर्थ जो है, अर्थ का रोटेशन कैसे है, कहाँ से कहाँ रोटेट करती है अर्थ, अर्थ का रोटेशन है फ्रॉम दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ये आपके पास ईस्ट है और ये आपके पास वेस्ट है। तो अर्थ आपके वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है अराउंड द एक्सिस, ये पोलर एक्सिस जो है इसके अराउंड क्या करती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो अब देखिए बेटा, ये जो अर्थ है इसका कंप्लीट मास हम क्या सपोज कर रहे हैं, m, which is concentrated at the center of earth, O. तो complete mass means all the particles of the earth will rotate along with the earth. अर्थ के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स है, जो भी बॉडीज है, वो सारे के सारे रोटेट करेंगी, क्लियर है। तो सपोज इस पॉइंट के ऊपर, दिस इज पॉइंट P, अगर कोई बॉडी है प्रेजेंट है तो वो अपना रोटेशन कैसे कंप्लीट करेंगी अलोंग विद अर्थ। अगर यहाँ से अगर मैं इस लाइन को सेंटर से या इक्वेटोरियल प्लेन के सेंटर से इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो नॉर्मली वी कॉल इट नॉट रेजिस्टेंस, सॉरी, रेडियस। ये रेडियस होगा, ये भी आपके पास क्या होगा, ये भी रेडियस है। तो देखिए बेटा, ये जो पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है वो ऐसे रोटेट नहीं करेगा, वो इसको अपना रेडियस नहीं मानेगा। ये जो रेडियस है, ये रेडियस अर्थ का रेडियस है। सपोज यहाँ पे कोई पार्टिकल है, वो प्रेजेंट है, तो वो अर्थ के साथ अपना एक रोटेशन कैसे कंप्लीट करेगा, इस एक्सिस के अलोंग। तो उसका जो सर्कल ऑफ रोटेशन होगा वो कुछ ऐसे होगा, समझ रहे हो आप, जिसका रेडियस कैपिटल आर ना होके क्या होगा, स्मॉल आर होगा, समझ रहे हो। सपोज all the particles will rotate along with earth from west to east direction. If suppose a particle is present at P and it is rotating along with the earth from west to east direction along this axis, in that case it will transverse a circle like in this path. It will not rotate like this because जो इसका रोटेशन होगा वो भी क्या होगा, वेस्ट टू ईस्ट होगा। तो वो ऐसा एक सर्कल ऑफ रोटेशन क्या करेगा, फॉर्म करेगा। अब हमें डिफाइन करना है, इसी से हम समझेंगे कि हमारे पास जो लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है। देखिए, ये जो अर्थ है इसके ऊपर ये 0 डिग्री है, इक्वेटर के ऊपर हम लैटिट्यूड कितना मानते हैं, 0 डिग्री। अब आप यहाँ से अगर कंप्लीट करते जाएंगे, पोल्स की तरफ जाते जाएंगे, तो ये लैटिट्यूड क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और यहाँ पे आपके पास लैटिट्यूड पोल के ऊपर कितना होगा, 90 डिग्री। इन द सेम वे यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री। तो लैटिट्यूड क्या है, कैसे आप लैटिट्यूड को डिफाइन कर सकते हो। तो लैटिट्यूड एक्चुअल में क्या है, एक एंगल है, ठीक है, ये एंगल जो कि कोई भी प्लेस, अगर सपोज ये एक प्लेस है, इसको आप जो अर्थ का सेंटर है उसके साथ ज्वाइन कर देते हो, तो ये जो लाइन है वो इक्वेटर के साथ या फिर इक्वेटोरियल प्लेन के साथ जितना एंगल बना रही है, इस एंगल को ही हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। फिर से समझिए, लैटिट्यूड को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट इज द एंगल, इसको अगर मैं थीटा मान लूं, तो इट इज द एंगल विच द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेस, दिस प्लेस आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, ए पार्टिकल सपोज ऑफ स्मॉल m मास इज प्रेजेंट। तो इस प्लेस को अगर आप सेंटर ऑफ अर्थ से ज्वाइन कर दो, तो जो ये लाइन अर्थ के सेंटर के साथ या इक्वेटोरियल, जो ये इक्वेटर है इसके साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। इस एंगल को ही हम क्या कहेंगे, लैटिट्यूड। कि कितना लैटिट्यूड है यहाँ पे, वो एंगल आपको ये एंगल देगा जो ये लाइन इस इक्वेटर के साथ फॉर्म कर रही है, कि कितने डिग्री का लैटिट्यूड है। तो लैटिट्यूड इज एक्चुअली the angle which the line joining from the place to the center of earth is making with the equator. इस एंगल को ही हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। तो जब अर्थ रोटेट करती है
तो क्या होता है कि ये जो लैटिट्यूड की वजह से या अर्थ के रोटेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो कैसे चेंज होती है वो हमें समझना है। तो आई होप आई एम क्लियर अबाउट व्हाट इज लैटिट्यूड एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लैटिट्यूड। अब देखिए, अब इसको समझते हैं अपने तरीके से। अब देखिए, ये जो आपके पास इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड है, इसके लिए हमें एक छोटा सा डेरिवेशन करना है, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझें। अगेन दिस इज अर्थ and its shape we are considering as a sphere. This is center of earth O. This is equatorial plane. ये इक्वेटोरियल प्लेन है। सपोज यहाँ पे कोई पार्टिकल प्रेजेंट है ऑफ मास स्मॉल m एंड दिस पॉइंट इज p। ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ का मास इज m, अर्थ का सेंटर इज o, where complete mass of the earth is supposed to be concentrated, उसको हम कैपिटल M बोल रहे हैं। I'm not writing all these things because you are aware about this. I'm considering a particle of small mass m at point p. Now इस पॉइंट के ऊपर जो लैटिट्यूड होगा उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इस पॉइंट से जो सेंटर ऑफ अर्थ है उसको ज्वाइन करेंगे। ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया है बाय लाइन। सपोज इट इज मेकिंग एन एंगल लैम्डा। ये एंगल कितना फॉर्म कर रही है? लैम्डा फॉर्म कर रही है। अब देखिए, ये है अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन। This is the axis of rotation of Earth, and Earth rotates from west to east, just like this. This is the rotation of Earth from west to east. This is North Pole, this is South Pole of Earth, this is east, and this is west. So this is the rotation of Earth. Along with the rotation of Earth, this particle of mass small m, which is present at this place, it will also complete its rotation, but its rotation will be like this. Its circle of rotation is like this. और इसका जो सर्कल ऑफ रोटेशन है उसका रेडियस जो होगा वो क्या होगा? स्मॉल r। ठीक है बेटा। तो अब देखिए, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा? अल्फा होगा। क्लियर है? और ये जो डिस्टेंस है सेंटर से P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपके पास? इसको हम C मान लेते हैं। इस पार्टिकल का जो सर्कल ऑफ रोटेशन है उसका सेंटर क्या है? C। तो ये जो डिस्टेंस है OP, वो रेडियस ऑफ अर्थ है, इट इज इक्वल टू r। और देखिए बेटा, अगर हम ये ट्रायंगल ले लें, ये वाली, इसमें इन ट्रायंगल OPC ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ये अगर एंगल लैम्डा है तो ये एंगल भी लैम्डा होगा। तो कोस लैम्डा मतलब इस ट्रायंगल के अंदर जो कोस थीटा होगा वो होगा आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास इस ट्रायंगल में क्या है? PC ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? OP। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास PC है R और हाइपोटेन्यूज है कैपिटल R। यहाँ से जो स्मॉल r है, मतलब इस सर्कल का जो रेडियस है स्मॉल r, इट इज गिवन एज r इक्वल टू r कोस लैम्डा। तो देखिए, ये आपके पास क्या होगा कि जो r है वो किसके इक्वल है?
पीसी के इक्वल है एंड दिस इज गिवन एज, हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर कोस लैम्डा। क्लियर? ये चीज समझ आई कैसे हम इस पीसी को क्या लिख सकते हैं, आर कोस लैम्डा लिख सकते हैं। अब एक चीज समझिए, जब ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल अर्थ के साथ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है इन अ सर्कल। जब ये पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ, ये जो इसका रोटेशन का जो सर्कल ऑफ रोटेशन है उसका जो सेंटर होगा उसके टुवर्ड्स होगा, मतलब इस डायरेक्शन में लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेटा देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से दिस पार्टिकल विल ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। ये फोर्स कौन सा है सेंट्रीपिटल का, जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है। लेकिन ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड इज गिवन एज, एक्चुअल में एम वी स्क्वायर आर होता है, लेकिन यहाँ पे मोशन कौन सा है, रोटेशनल मोशन है, तो यहाँ पे हम जो वेलोसिटी लिखेंगे वो लीनियर वेलोसिटी नहीं लिखेंगे, वो हम एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे। तो ये होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इट इज अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर एंड दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is away from the center, due to which this particle you can say tries to fly away from the center। ठीक है, ये भागने की कोशिश करेगा सेंटर से दूर, इसीलिए I have marked this centrifugal force by an arrow away from the center। क्लियर? अब ये देखिए बेटा, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और सेंट्रीपिटल फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर। अब ये माने कि व्हेन दिस अर्थ इज एट रेस्ट, तो इस पार्टिकल के ऊपर जो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगेगा दैट वुड बी टुवर्ड्स द सेंटर एंड इट्स का मैग्नीट्यूड इज गिवन एज mg। इस पार्टिकल के ऊपर जो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, mg होगा। और एक चीज देखें, अर्थ इज नॉट एट रेस्ट, ये हम कब कंसिडर कर रहे हैं, जब अर्थ किसके ऊपर है, रेस्ट के ऊपर है। बट अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इन दैट केस इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि अर्थ तो रोटेट कर रही है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो g नहीं होगी, कितनी होगी, g डैश। और उस केस में जो इस पार्टिकल के ऊपर जो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कुछ ऐसे होगा, एंड इट इज गिवन एज mg डैश। समझे? ये mg तब है जब अर्थ किसके ऊपर है, रेस्ट के ऊपर है। तो इस पार्टिकल के ऊपर अर्थ के रेस्ट पे होने की वजह से जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है उसको हम कैसे बताएंगे, m इंटू जी। m इसका मास और g इसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट, दैट मीन्स जो वेट होगा, ये क्या है, वेट। तो वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। बट व्हेन दिस अर्थ इज रोटेटिंग एंड अलोंग विथ अर्थ दिस पार्टिकल इज आल्सो रोटेटिंग जस्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो उस केस में इस पॉइंट के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो g डैश होगी, और जो वेट की वजह से जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। अब आप देखें, ये जो mg डैश है, दिस mg डैश इज रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है किसका, एक तो इसका, ये क्या है, mg का, और एक ये वाला फोर्स जो कि क्या है, एम आर। इस लाइन के लोग कौन सा फोर्स है, इस लाइन के लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए, इस एम आर ओमेगा स्क्वायर और इस एम जी का रिजल्टेंट है ये, तो एम जी डैश इज रिजल्टेंट ऑफ, कैन आई से दिस इज ट्रू वेट। जब बॉडी, जब अर्थ किसके ऊपर है, रेस्ट के ऊपर है, तो इन दिस डायरेक्शन जो फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ वो इस पार्टिकल के वेट का ही फोर्स होगा। तो ये रिजल्टेंट है किसका, ट्रू वेट, रिजल्टेंट ऑफ ट्रू वेट, that means mg, and centrifugal force ये, and
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, कि पार्टिकल के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है उसका, और जो इस पार्टिकल का जो ट्रू वेट है उसकी, उन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है ये mg डैश। तो अगर हम इसको एक पैरेललोग्राम से कंप्लीट कर लें, देखिए ऐसे, ये तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा कि जिसके ये दो डायरेक्शन, ये दो पैरेललोग्राम की दो साइड्स हैं आर गिवन बाय mg एंड mr ओमेगा स्क्वायर। देखिए ये साइड इज गिवन बाय द this force and this side of the parallelogram is given by mg, and ये क्या है, diagonal है mg dash। क्लियर है, ये क्या है, mg dash है। तो दिस mg dash यहाँ पे पैरेललोग्राम का लो लगाएंगे और क्या होगा, ये सब मैं रब कर रही हूँ। यहाँ पे जो डायगोनल है इट इज गिवन एज mg डैश, और यहाँ पे हम पैरेललोग्राम लो फोर्सेस लगाएंगे। इन दैट केस ये क्या होगा, ये होगा पैरेललोग्राम की जो ये साइड है इसके लोग जो फोर्स लग रहा है वो है mg, उसका लेंगे mg स्क्वायर। पैरेललोग्राम की इस साइड के लोग जो फोर्स लग रहा है वो है m r ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, और ये होगा, अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख लूँ तो देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा, यही होगा। तो ये देखिए एक फोर्स ये है तो इस फोर्स का स्क्वायर f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं 2f1 f2, तो 2f1 मतलब mg, और ये होगा mr ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर एंड कोस थीटा। देखिए थीटा कितना ले, ये कंप्लीट एंगल देखिए, ये वाला, ये कंप्लीट एंगल 180 डिग्री है। अब इतना एंगल कितना है, अल्फा है, तो ये एंगल चाहिए हमें, तो कि mg और mr ओमेगा स्क्वायर के बीच में एंगल कितना है। तो इस एंगल को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस एंगल को आई कैन राइट 180 माइनस अल्फा, तो इसको हम लिखेंगे 180 माइनस अल्फा नहीं सॉरी लैम्डा। ठीक है बेटा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए m तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, और इस इक्वेशन में भी m है। तो m को जब रूट से बाहर लेके आओगे तो सब जगह स्क्वायर है, ये देखिए यहाँ से भी स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से और इस इक्वेशन में से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली वी कैन राइट g डैश इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ये देखिए जब इसको ओपन करोगे तो ये होगा r स्क्वायर, और हमने r को क्या लिखा था, r को हमने लिखा था कैपिटल R कोस लैम्डा। तो इस r को क्या लिख सकते हैं, प्लस इसको हम लिख सकते हैं r स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा, और साथ में क्या है ओमेगा 4, यही है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है, इसका अगेन स्क्वायर करेंगे तो दिस इज ओमेगा 4 प्लस, ये m तो कैंसिल आउट ही हो गया है, कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, ठीक है, कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा। तो माइनस अगर आएगा यहाँ पे तो ये प्लस है, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे क्या होगा, माइनस, तो दिस इज माइनस 2, ये होगा g, और ये है आपके पास m, तो आप कैंसिल आउट कर चुके हो, r को आप क्या लिखोगे, देखिए r स्क्वायर है तो इसको आप क्या लिखोगे, r स्क्वायर, और यहाँ पे ये r ही है तो इस r को क्या लिखोगे, r कोस लैम्डा, तो इसको आप लिख सकते हो r कोस लैम्डा, और साथ में देखिए यहाँ से भी क्या आ जाएगा आपके पास, कोस लैम्डा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर लैम्डा। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए बेटा क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से g डैश इज इक्वल टू, यहाँ से g कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से अगर g कॉमन लोगे तो यहाँ पे होगा 1 प्लस, इसमें g है नहीं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, r स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा ओमेगा 4, और ये इसके अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, g स्क्वायर, क्योंकि आपने ब्रैकेट से बाहर, रूट से बाहर g को क्या लिया है, कॉमन लिया है, मतलब
जी स्क्वायर को अगर आप कॉमन लेते हो तो ये स्क्वायर रूट से जब बाहर जाएगी तो जी बन जाएगी, बिकॉज स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा रूट से। तो ये देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे जी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप जी स्क्वायर करोगे तो एक तो न्यूमरेटर में है तो ये आपके पास होगा 2r कोस स्क्वायर लैम्डा, और यहाँ पे बेटा ओमेगा 4 भी था। सॉरी ये आपके पास स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर भी होगा यहाँ से। तो कोस स्क्वायर लैम्डा ओमेगा स्क्वायर डिनोमिनेटर में जी, एंड इसको अगर हम रूट में ऐसे लिख सकते हैं पावर 1/2। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे हम क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करते हैं। ये जो आपके पास है आर की वैल्यू है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होगा 6.4 इंटू 10⁶ मीटर्स, और हमें क्या चाहिए जी की वैल्यू कितनी होगी, जी की वैल्यू होगी 9.8। ओमेगा को चाहिए, ओमेगा कैसे लिख सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हो 2 पाई बाई टी। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ कितना होता है, इसको आप लिख सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। तो 24 आवर्स नहीं चाहिए हमें, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो दिस इज 2 पाई, 2 पाई को आप लिख सकते हो 3.4, 2 इंटू 3.4, और ये होगा 24 आवर्स इंटू 60, अब ये बन गए मिनट्स और अब ये बन गए सेकेंड्स। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब देखिए ये तो आ गई ओमेगा की वैल्यू। अगर हमें सिंपली निकालना हो आर ओमेगा कितना होगा, आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से देखिए आर ओमेगा स्क्वायर ओवर जी। तो अगर इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा आर है आपके पास 6.4 इंटू 10⁶, और ओमेगा आपके पास है ये 2 पाई स्क्वायर, या फिर सिंपली सीधा लिख दो 2 पाई 24 इंटू 60 इंटू 60। तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, जब इसको सोल्व करोगे तो यू विल गेट 1/289। समझ रहे हो, 1/1 डिवाइडेड बाई 289। तो आप देख सकते हो जो आर ओमेगा स्क्वायर वैल्यू की वैल्यू है कितनी स्मॉल है, ठीक है। तो आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी अगर इतना स्मॉल है तो देखिए ये वैल्यू इसमें तो आर स्क्वायर ओमेगा 4 ओवर जी स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे, बिकॉज आर ओमेगा स्क्वायर ओवर जी इज वेरी स्मॉल, सो इन दिस इक्वेशन वी विल क्या करेंगे, जो हायर ऑर्डर की जो पावर्स हैं, जो पावर्स हायर ऑर्डर की हैं उनको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज यही हमारे पास क्या आ रहा है वो छोटा आ रहा है, तो ये वैल्यूज तो और भी छोटी आएंगी। तो सिंपली आपके पास ये क्या बन जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू, देखिए इसको तो हम नेग्लेक्ट ही कर देंगे, ये आपके पास होगा 1, और ये यहाँ से आएगा माइनस, ये आपके पास होगा 2r, ये होगा ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास होगा कोस स्क्वायर लैम्डा, एंड दिस इज g एंड डिवाइडेड बाय पावर 1/2। आई होप ये क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरे को रब कर दीजिए, बस वी नीड द लास्ट इक्वेशन। अब आप देखें यहाँ से आपके पास जो जी डैश की वैल्यू आई है वो आई है जी, और अगर इसको आपको बायनोमियल थ्योरम से अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो तो ये आपके पास आ जाता है 1/2, पावर आगे आ जाएगी, सो 1/2, एंड दिस इज 2r ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा डिवाइडेड बाय जी। यही आएगा आपके पास, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, एंड जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा बाय जी। ठीक है, अब देखिए बेटा अगर आप जी को अंदर मल्टीप्लाई करते हो ब्रैकेट में तो ये आपके पास आ जाता है जी माइनस, यहाँ पे जी मल्टीप्लाई करोगे तो जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यू विल गेट आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा। So this is the acceleration due to gravity at this point. तो देखिए बेटा अगर आपके पास r पॉजिटिव है
और जो ओमेगा है वो पॉजिटिव है। तो जी डैश की वैल्यू देखिए, जी में से ये वैल्यूज कुछ ना कुछ इनका जो यहाँ से कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिलेगी। तो उस वैल्यू को अगर जी में से अगर आप माइनस करते हो, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस, तो जी डैश की वैल्यू आपको डेफिनेटली जी से क्या मिलेगी, कम। तो जी डैश इज लेस देन जी। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे कोस अल्फा, मतलब ये जी डैश की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इस लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये जो लैटिट्यूड है वो अगर कितना हो, जीरो हो, समझ रहे हैं, मतलब ये जो लैटिट्यूड है वो यहाँ पे हो, मतलब 0 डिग्री हो, ये जो पॉइंट हो वो इक्वेटर के ऊपर हो, तो उस केस में आपके पास फर्स्ट केस, इसका मतलब लैम्डा अगर 0 है तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एट इक्वेटर की। तो एट इक्वेटर आपको पता है, मैंने आपको बताया था ना, लैटिट्यूड ऊपर जाओगे तो लैटिट्यूड क्या होते जाएंगे, 0 डिग्री। यहाँ पे ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री लैटिट्यूड है। इन द सेम वे साउथ पोल पे यहाँ पे लैटिट्यूड्स इंक्रीज होते जाएंगे, तो ये आपके पास कौन सा होगा, 90 डिग्री लैटिट्यूड होगा। क्लियर है? क्योंकि इस पॉइंट को अगर आप सेंटर से अर्थ से ज्वाइन करोगे तो देखिए ये इक्वेटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो पोल्स के ऊपर जो लैटिट्यूड होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का। तो इक्वेटर के ऊपर लैटिट्यूड कितना होगा, 0। क्योंकि देखिए इसको आप अगर इस थीटा को अगर लैम्डा को अगर आप 0 कर दो तो वो 0 तो यहीं पे हो सकता है इक्वेटर के ऊपर, अगर इसको आप ऐसे ले आओ तो ये लैम्डा कितना हो जाएगा, 0, और वो पोजीशन किसकी होगी, इक्वेटर की। तो इक्वेटर के ऊपर जो जी की वैल्यू है, जी डैश है, वो कितनी होगी, तो देखिए मैं इसको लिख सकती हूँ एट इक्वेटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हम जी डैश लिख रहे हैं उसको मैं जी ई लिख सकती हूँ। इट इज गिवन एज जी माइनस, यहाँ पे देखिए आपके पास कोस 0 कितना हो जाएगा, 1। तो कोस 0 अगर 1 होगा तो ये जी डैश, जी में से आप क्या माइनस करोगे, आर ओमेगा स्क्वायर माइनस करोगे, और आर भी पॉजिटिव है और ओमेगा भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो जी ई की वैल्यू है वो क्या मिलेगी आपको, मिनिमम मिलेगी। मैक्सिमम कब मिल सकती है, जब ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाए, 0। और कंप्लीट टर्म 0 कब होगी, जब ये आपके पास जो लैटिट्यूड है ना लैम्डा, उसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 90 डिग्री, बिकॉज कोस 90 कितना होता है, 0। तो किसी तरीके से अगर ये लैटिट्यूड लैम्डा 90 हो जाए तो आपके पास जो जी डैश है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वही क्या होगी, मतलब ये बोल सकते हो जब अर्थ रेस्ट के ऊपर होती है तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो सेम होगी एज दैट ऑफ अर्थ अगर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो इस केस में जब लैटिट्यूड लैम्डा 90 डिग्री होगा वो किसका केस होगा, एट पोल्स का केस होगा। तो एट पोल्स जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको यू कैन राइट जी पी, और ये आपके पास होगा जी माइनस, यहाँ से देखिए कोस 90 कितना हो जाएगा, 0। तो जी पी इज इक्वल टू जी, और ये यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो याद रखें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मिनिमम होगी इक्वेटर के ऊपर एंड मैक्सिमम होगी पोल्स के ऊपर। और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एट पोल्स, दिस रिमेन अनचेंज्ड, चाहे आपकी अर्थ रोटेट कर रही हो चाहे आपकी अर्थ रेस्ट के ऊपर हो, ये वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पोल्स के ऊपर क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो आई होप आपने देखा ना कि effect of rotation of earth on the value of acceleration due to gravity is maximum कहाँ पे है, इक्वेटर के ऊपर, एंड मिनिमम कहाँ पे है, पोल्स के ऊपर, कि पोल्स के ऊपर सबसे कम वैल्यू चेंज कर रही है और यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर वैल्यू सबसे ज्यादा चेंज हो रही है। तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। So these are the some topics which are not included in CBSE syllabus, but these are important from the exam point of view. Now let us some numericals. And first numerical is, these are the numericals which are from the NCERT exercises. Question 1 है, choose the correct alternative.
करेक्ट ऑल्टरनेटिव आपको चूज करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है acceleration due to gravity, that means g, increases or decreases with increase in altitude। कि ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस से अगर ऊपर आप एल्टीट्यूड को इंक्रीज करते जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? तो आंसर इज acceleration due to gravity will decrease with the increase in height or altitude. Second question is acceleration due to gravity, that means g, increases decreases with increasing depth। अगर आप डेप्थ को क्या करते जाते हो? इंक्रीज करते जाते हो और ये मान लेते हो कि जो अर्थ की डेंसिटी है वो कैसी है? यूनिफॉर्म डेंसिटी है, जस्ट लाइक दिस। देखिए ये अर्थ है, तो यहाँ पे सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी? जी। अगर अर्थ की सरफेस के अंदर आप डेप्थ को इंक्रीज करते हुए जाते हो, सपोज इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जैसे जैसे डेप्थ को इंक्रीज कर रहे हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी? तो आंसर अगेन डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट है आपके पास acceleration due to gravity, that means g, is independent of mass of earth। क्या मास ऑफ अर्थ से इंडिपेंडेंट है या फिर मास ऑफ बॉडी से? तो आपने देखा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन एज gm/r²। हियर m इज मास ऑफ द अर्थ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ द अर्थ के ऊपर तो डिपेंड कर रही है, तो ऑब्वियसली किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही? मास ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो आंसर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। So this is a theoretical question which clears you the concept of acceleration due to gravity, how increases, decreases. That means variation of acceleration due to gravity. Second question is देखिए एक important question है। Question is a rocket is fired from the earth towards the sun। कि अर्थ से सन की तरफ एक रॉकेट को फायर किया गया। एट व्हाट पॉइंट ऑन इट्स पाथ, मतलब जब ये रॉकेट अर्थ से सन की तरफ, सपोज ये आपके पास अर्थ है और ये आपके पास सन है, when this rocket is heading towards the sun on its path at what point, मतलब जब ये अर्थ से सन तक का डिस्टेंस अगर हम सपोज कर लेते हैं x है, तो किस पॉइंट पे इस रॉकेट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो 0 होगा। ठीक है, मतलब इस पाथ के बीच में, यहाँ से यहाँ का जो पाथ है, तो इस पाथ पे कहाँ पे वो पॉइंट होगा जहाँ पे इस रॉकेट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। मास ऑफ अर्थ गिवन है, मास ऑफ सन गिवन है, और हमें क्या गिवन है कि अर्थ का जो ऑर्बिटल रेडियस है, ठीक है, वो कितना है? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स। तो कैसे फाइंड आउट करोगे उस पॉइंट को? तो देखिए ये जो डिस्टेंस है, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास x डिस्टेंस है, ए पॉइंट फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं x, ये वो पॉइंट है, वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑन द रॉकेट ड्यू टू सन एंड अर्थ बिकम्स इक्वल एंड ऑपोजिट। क्योंकि ये इस पॉइंट के ऊपर जो सन है वो इस रॉकेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अर्थ है वो अपनी तरफ रोटेट करेगी, अट्रैक्ट करेगी। इस पॉइंट के ऊपर दोनों का जो ग्रेविटेशनल पुल है इस पार्ट, इस रॉकेट के ऊपर, वो क्या हो जाता है? इक्वल एंड अपोजिट हो जाता है। तो उस केस में इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो इसका क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल माइनस सन का ग्रेविटेशनल पुल, उसको हम क्या रख सकते हैं? इक्वल टू 0 रख सकते हैं। तो देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है
इस रॉकेट रॉकेट के ऊपर ड्यू टू द सन। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो g होगा मास ऑफ सन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ रॉकेट, उसको हम m से डिनोट कर लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अगर ये कंप्लीट डिस्टेंस क्या होगा, वो होगा अर्थ का जो ऑर्बिटल रेडियस है अराउंड द सन, उसको हम r मान रहे हैं। तो r आपके पास कितना है, ये आपको गिवन है, ठीक है, 1.5 × 10⁻11। तो r में से ये डिस्टेंस है r, अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस। तो r में से अगर अर्थ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, तो r में से अगर मैं x को माइनस कर देती हूँ, तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल क्या है, इक्वल है। तो ये डिस्टेंस क्या लेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे हम r माइनस एक्स का स्क्वायर। एंड ये ग्रेविटेशनल पुल, दिस ग्रेविटेशनल पुल इज ऑफ द सन ऑन द रॉकेट, और ये इक्वल है किसके, ग्रेविटेशनल पुल के इक्वल जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है। तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ लिखेंगे इसके ऊपर, इस रॉकेट के ऊपर, और ये डिस्टेंस कितना होगा, अर्थ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, ये अगर डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस सन से यहाँ तक का कितना था, r माइनस एक्स, इसलिए आई हैव रिटन r माइनस एक्स का स्क्वायर, और अर्थ से रॉकेट तक का डिस्टेंस कितना है, x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हम कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं, g की वैल्यू को कैंसिल आउट कर सकते हैं, और यहाँ से m से m भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इफ आई टेक द रेशियो ऑफ ms ओवर me, ms के डिनोमिनेटर में अगर me आ जाए, तो देखिए जो r माइनस एक्स है ये x स्क्वायर के न्यूमरेटर में शिफ्ट कर जाएगा, तो ये होगा r माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए मुझे r माइनस एक्स स्क्वायर और r स्क्वायर, अगर मैं दोनों तरफ रूट ले लूँ तो क्या होगा, ये बन जाएगा r माइनस एक्स, ये बन गया x, एंड ये बन गया ms ओवर me। क्लियर है। ms ओवर me को अगर सोल्व करें तो वी हैव मास ऑफ अर्थ हाउ मच, इट इज 2 × 10⁻3, और मास ऑफ सन is 2 × 10⁻, sorry, it's 30 kg, और मास ऑफ अर्थ is 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, 10⁻24 kg, इसको डिवाइड करेंगे, सोल्व करेंगे, तो वी विल गेट 10⁻3 रूट g। ये क्लियर है। तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं r बाई एक्स माइनस x बाई एक्स मतलब 1, एंड दिस इज इक्वल टू 10⁻3 रूट डिवाइडेड बाई रूट 3। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो पहले we will take this -1 to right hand side, तो ये हमारे पास आएगा r माइनस r डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 10⁻3 रूट 3 प्लस 1। क्लियर। और x हमारे पास क्या होगा, इसका अगर आप पहले एलसीएम ले लेते हो तो ये आपके पास आ जाता है 10⁻3 ओवर प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3। ये आपके पास है r प्लस एक्स, r डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू दिस मच, बट वी नीड x, तो x को हमें न्यूमरेटर में लाना है, तो इसका रेसिप्रोकल इस साइड भी ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड भी रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो क्या होगा x बाई आर, एंड दिस इज इक्वल टू रूट 3 बाई रूट 3, एंड ये आपके पास होगा प्लस 10⁻3। अब x को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना है, इन दैट केस r क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर जाएगा। तो x इज इक्वल टू r रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस 10 रूट 3। बस अब इसको क्या करना है, सिंपली सोल्व करना है। r की वैल्यू मतलब ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ में गिवन है, बस उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए ये आपके पास है, r की वैल्यू इज 1.5 × 10⁻11 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3 की वैल्यू को आप लिख सकते हो 1.732 प्लस 10⁻3 को आप लिख सकते हो 1000, और ये आप इसको सोल्व करोगे तो यू विल गेट 2.59 multiplied by 10⁸ meters. So this is the question based on NCERT which clears you
some of the topics concept. Let us try one more question. Now second question is, assuming the earth to be a sphere of uniform mean density, अर्थ को हम एक sphere consider कर रहे हैं of uniform mean density, how much would a body weigh half way down to the center of earth? कि अगर आप center of earth से way down to the center of earth, मतलब आप surface से अगर center of earth की तरफ जाते हो तो half distance पे जो body का weight होगा वो कितना होगा? If it is weighted 250 न्यूटन ऑन द सरफेस, अगर सरफेस के ऊपर अगर इसका वेट कितना है 250 न्यूटन है, तो हाफ वे में टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ जो बॉडी का वेट होगा वो कितना होगा वो आपको बताना है। तो देखिए जो वेट ऑफ द बॉडी है उसको हम कैसे लिखते हैं, वेट ऑफ द बॉडी इज गिवन एज मास ऑफ द बॉडी एंड ऑन दिस मास तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका इफेक्ट कितना है, तो वेट ऑफ द बॉडी इज गिवन एज mg, बट दिस वेट ऑफ द बॉडी इज ऑन द सरफेस। क्लियर है, क्योंकि सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है g। अगर हम वेट ऑफ द बॉडी निकालें किसके ऊपर, एट डेप्थ d के ऊपर, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो होगी m मल्टीप्लाइड बाय इस डेप्थ के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो होगी बेटा g डैश, तो ये हो जाएगा mg डैश। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमें गिवन है, तो देखिए इसको आप कैसे कर सकते हो, ये g डैश की वैल्यू को कैसे रिप्लेस कर सकते हो, जो g डैश की वैल्यू है दैट मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ, उसको हमने फाइंड आउट किया था और उसको लिखा था g इंटू 1 माइनस डी ओवर आर, यही लिखा था। तो देखिए यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, याद रखिए ये कहाँ पे है, वेट ऑफ द बॉडी हम फाइंड आउट कर रहे हैं कहाँ पे, एट डेप्थ डी। क्लियर, तो ये होगा मास ऑफ द बॉडी m इंटू जी, ये हो जाएगा m, इस g डैश को रिप्लेस कर दीजिए, ये होगा g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया mg, और mg किसके इक्वल है, mg means weight of the body on the surface which is given to us, this is 250 newton into 1 minus d। ये डेप्थ कितनी बताई है, दिस डेप्थ इज हाफ द वे टू द सेंटर ऑफ अर्थ, कि अर्थ की सरफेस से ये अगर कंप्लीट रेडियस है r, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सरफेस तक का डिस्टेंस अगर r है, तो इस r/2 डिस्टेंस पे यहाँ पे ये r/2 होगा, ये r/2 होगा, तो यहाँ पे जो बॉडी का वेट होगा वो कितना होगा, तो डेप्थ हम कितना ले रहे हैं, रेडियस का हाफ, तो ये हो जाएगा r/2, तो रेडियस का हाफ करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये देखिए r से r कैंसिल हो गया, तो 250 माइनस ये होगा 1 माइनस 1/2, तो ये होगा 1/2, तो ये होगा 250/2, दिस इज 125 न्यूटन। So these are the numericals based on the gravitation. This is all for today. In the next video, we will do some more numericals based on NCERT. Thank you.